are so many types of the organic reaction. For example, substitution, elimination, addition, rearrangement, oxidation, pericyclic, photochemistry. There are so many reactions, but here only we discuss all the 4 types of the reaction. First, substitution, and second, elimination reaction. Elimination reaction means, in substitution means any group substitute by other group. This is called a substitution reaction. Elimination reaction, the loss of the water molecules. एक मिनट ये मार करती नहीं यार इसपे means not only removal of the water, any types of atom, means 2 atoms like X and Y. So at a time X and Y both are removed from any compound, any molecule. This is called the elimination reaction and formation of the unsaturated molecules like alkene, alkyne. Then this type of the reaction, elimination reaction. And elimination reaction are further 3 types: alpha elimination, beta elimination, gamma elimination. Alpha elimination means both atoms are removed from the same carbon atom. Here in this case, alpha elimination, hydrogen or X, both are removed from the same carbon atom, means 1-1 elimination. So this type of the elimination is called the alpha elimination or 1-1 elimination and formation of the carbene. And the carbene is the electron deficient species. This carbene further involved in the following for the cyclopropane type ring. Okay. Next is the beta elimination. Beta elimination means loss of the 2 atoms from 1 and 2 position, or you can say that alpha and beta position. So at alpha, ये चल जाए पेन तो कैसे? So the X, any carbon atom attached to the functional group. Here the functional group is the X. So the attachment of the carbon from X is called the alpha position, and the next adjacent carbon is the beta position. So and from the alpha and beta position both group removed, so formation of the alkene group. Gamma elimination means the loss of the atom from 1 position and 3 position, or you can say alpha and gamma position. So the formation of cyclopropane ring or cyclic compound. So these 3 types of the elimination reaction, and further beta elimination are further subdivided into the E1 elimination, E2 elimination, E1 CV elimination, EI elimination. ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द EI एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, EI एंड E1 CV. तो आप लोगों के कोर्स में सिर्फ ये 2 हैं, बुक्स में भी देखोगे तो मैक्सिमम ये 2 मिलेंगे. ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैक्सिमम हायर क्लास में पढ़ाते हैं, बट अच्छा है कि अभी सीख जाओगे तो होता है कंपटीशन में इससे रिलेटेड कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो द E1 एलिमिनेशन मींस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन मींस बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, EI एलिमिनेशन मींस एलिमिनेशन इंटरनल बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर. पायरोलिटिक मींस यानी थर्मल एलिमिनेशन, जहाँ पे हीट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है उसे बोलते हैं EI एलिमिनेशन. पेरीसाइक्लिक सिन एलिमिनेशन, E1 CV एलिमिनेशन. तो इन सब में क्या है, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन. इन सब में डिफरेंस क्या है, E1 एलिमिनेशन में होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, याद रखना इस चीज को. ठीक है, तो E1 में होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और जहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन करता है, तब प्रोडक्ट बनता है. E2 एलिमिनेशन क्या है, इसको कह सकते हैं कि बोथ ग्रुप एक्स एंड और आपका जो वाई था, ठीक है, यानी पीछे वाला जो ग्रुप था ये एक्स एंड वाई, जो 2 ग्रुप बाहर निकले ये दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए. या पेंसिल शो नहीं हो रही. ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये इस तरह से होना चाहिए, यानी अगर एक्स यूं है तो एच ही होना चाहिए, यानी 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए और एंटी पोजीशन होनी चाहिए दोनों की. ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका E2 एलिमिनेशन. ये प्रोसेस है, सॉरी E2, हाँ E2 एलिमिनेशन. ठीक, E1 एलिमिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ये क्या कंसर्टेड रिएक्शन होती है SN2 की तरह, जैसे 1 स्टेप रिएक्शन है, इसी तरह से ये होता है कंसर्टेड 1 स्टेप प्रोसेस. ठीक है, और ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस. E2 और EI सेम है, बट इसमें क्या होता है कि दोनों ही ग्रुप आपके सिन कंडीशन पे होते हैं, यानी एक्स और जो भी आपका वाई है, वो दोनों ही ग्रुप जो होंगे आपके वो सिन पोजीशन पे होंगे, यानी सेम साइड पर होंगे.
तो वहां पर EI एलिमिनेशन होता है, या थर्मल एलिमिनेशन या पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक है, इसको हम थर्मल एलिमिनेशन भी बोलते हैं। E1CB एलिमिनेशन होता है कहां पर, जहां पर जो आपका लीविंग ग्रुप है, मैं कह दूं जैसे ये है और ये एक्स जो लगा हुआ है, ये जो लीविंग ग्रुप होता है, ये पुअर लीविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां पर जो आपका मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस की प्रेजेंस में कि हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। और वो कौन सा हाइड्रोजन होता है, और इस पर ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा जो इसको स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज कौन करते हैं, नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इस टाइप के पोजीशन पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ठीक है ना। अभी फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया है ना आपको, इंडक्टिव हेड में, वहां पे ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, याद आ रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ऐसा ग्रुप, ऐसी जो कंडीशन होती है वहां पे E1CB एलिमिनेशन होता है। तो इस चीज को याद कर रखना, बहुत शॉर्टकट में मैंने ये चीज तुम्हें बता दी है। बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग तरीके से लिखा होगा, समझ में नहीं आता है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, इसलिए पहले इस पेज को पढ़ो, आगे तब बताऊंगा, समझ लो यहीं पे। हाँ, सर E1CB को एक बार रिपीट कर दिएगा सर। E1CB का मतलब ये होता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है, कोई भी ग्रुप होता है जब वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, कोई एसिड है जैसे HCl क्या है, ठीक है, या H2SO4 है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या है, HSO4 माइनस, ठीक है। ये तो होता है, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, जो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो पता है, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है, ये तो बताया था, याद आ रहा है। यस सर। वही कंडीशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो ये लिविंग ग्रुप बेटर है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए आसानी से क्या होता है, बेस यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, आसानी से निकल जाता है। अब लेकिन क्या है कि पुअर लिविंग ग्रुप है जो निकल ही नहीं सकता आसानी से, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर ऐसी कंडीशन कोई प्रेजेंट होगी कि वो क्या होगा, पहले ये हाइड्रोजन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा बहुत ज्यादा, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगा होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। अब ये हेल्प करेगा इसको यहाँ से रिमूव करने में। तो ऐसी कंडीशन में E1CB एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस एलिमिनेशन। जो आप अल्डोल रिएक्शन पढ़ते होगे अक्सर, अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, तो वहां पे एक स्टेप आता है, ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, अभी E1CB एलिमिनेशन बनती है, आप कभी देखना, अगर अब तक नहीं देखा तो ये आपको अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना, वहां पे देखना E1CB स्टेप बनता है, पहले नेगेटिव चार्ज बनता है, बाद में रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये चार सर पुअर लिविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे? है जी, पुअर लिविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे? बेटा पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब बताओ इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। आयोडाइड है। तो जैसे जैसे हम ये जैसे आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कह दूं सिंपल कि वाटर, सॉरी वाटर ले लो, तुम ले लो OH, और एक ले लिया H3O प्लस, ठीक है, ये किसी ग्रुप से अटैच है, और ये है। अब बताओ इन दोनों में बेटर कौन है, पुअर कौन है? 3O+ बेटर है। 3O प्लस इसलिए बेटर है क्योंकि जब ये रिमूव हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसको क्या है, ये प्लस चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट अपनी तरफ ये बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सके, ठीक है। तो इसलिए कि पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे ही ग्रुप जो लगे होते हैं, खासकर OH, या सिंपल मैं कह दूं NH2 ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऐसा नहीं होता आसानी से निकल जाए। लेकिन इसलिए NH3 प्लस अगर मैं लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या है कि बाहर से निकलेगा यहाँ से, तो ये वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए ऐसे कोई ग्रुप जो इसको हेल्प करें आपकी इसको रिमूव करने के लिए, वो बेटर लिविंग ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी एसिडिटी देखो, यानी जो जितना बेसिक लेस बेसिक होगा, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, हमेशा याद रखना। अनस्टेबल होते हैं ये। हाँ, ठीक है, तो जो वीक बेस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके मुकाबले अब इसमें भी एक कंडीशन होती है, वो प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, एप्रोटिक या एप्रोटिक, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ नहीं बता रहा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वो चीज मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ग्रुप बेटर है, कौन सा नहीं है, खासकर जो आपके आयोडीन के केस ही रहते हैं, हैलोजन के केस, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिखा दिया है, इसको याद रखना। तो आयोडीन सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद आपका फ्लोराइड सबसे वीक होता है। तो एक क्वेश्चन देखो आगे शायद आएगा भी, वहां पे एक क्वेश्चन में हमने क्लोरीन भी यूज करा है और फ्लोरीन भी यूज करा, वहां पे E1CB एलिमिनेशन है, क्योंकि उसमें आपका पुअर लिविंग ग्रुप लीव करता है, तो वहां पे क्या फ्लोरीन को बाहर निकालते हैं, इसलिए वहां पे आंसर जो होता है क्लोरीन वाला आता है। और जब आपको कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो दोनों दोनों तरफ से आंसर होगा, तो वहां पे फिर यही दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा आपका एलिमिनेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अभी आगे आएगा तब समझ जाओगे। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, ठीक है, ये चारों में डिफरेंस क्या है। और ये थर्मल एलिमिनेशन अक्सर जब होते हैं तो सिन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो सिन एलिमिनेशन होने की वजह से क्या होता है कि रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं अक्सर, इसमें रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है, यानी दोनों ग्रुप सेम टाइप होना चाहिए, रिंग टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो वहां पर ये E1 EI एलिमिनेशन होता है। तो द E1 एलिमिनेशन मींस दिस इज द टू स्टेप प्रोसेस लाइक SN1 की तरह, डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, कहां गया मार्कर, हो गया, ठीक है, स्टेबल ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये भी टू स्टेप प्रोसेस है, यानी पहले के यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, नेक्स्ट then the extract of the hydrogen by in the presence of the base and formation of the alkene. So even elimination also not depend on the concentration of base, only depend on concentration of substrate. ठीक है भैया, मोहम्मद सलीम क्लास हो गई, जाओ अटेंडेंस लगा जाओ। So this is the first order reaction because only depend on the concentration of the substrate, not a concentration of the base. नेक्स्ट दिस इज द रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव मैंने शायद आपको बताया, नहीं बताया। रीजियो सिलेक्टिव मींस होता है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मे बी वन इज मेजर और वन इज द माइनर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर का मतलब यानी मेजर अमाउंट बनेगा, माइनर का मतलब लेसर अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, यानी एनी रिएक्शन दे आर द पॉसिबल ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो हियर दे आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। ZJF रूल क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड क्या बेटा? एल्कीन। सर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होता है। हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड जो आपका अल्कीन है, ठीक है। ये होता है कि ZJF रूल बोलते हैं इसको, या ZJF रूल बोलते हैं, बुक्स में अलग अलग नाम से दे रखा है, ठीक है। ZJF भी बोलते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है, जैसे ये अल्कीन है, अगर अल्कीन पे चारों तरफ हाइड्रोजन है तो क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे जैसे हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता जाऊं, ठीक है, और इसका मैं सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाऊं, मैंने यानी अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, यानी अब वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। अगर मान लो तुम ये बॉन्ड को मैं कह दूं इधर ब्रेक करा मैंने, तो इसका मतलब क्या है, तो ये प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, ये दोगा, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इधर, है ना, ये तो मतलब है। और मैंने इधर अल्काइल ग्रुप लगा दिया, एक अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप तो स्टेबलाइज करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ये तो मतलब होता है। तो जैसे जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये मोर सब्स्टिट्यूट और हो गया। अब मैंने दूसरी साइड पे बढ़ा दिया सब्स्टिट्यूशन, यानी हाइड्रोजन रिमूव करके क्या हुआ, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक। तो इसको बोलता है, ये ZJF रूल ने कहा था। ZJF रूल, अकॉर्डिंग टू ZJF रूल मींस फॉर्मेशन ऑफ द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल। और रीजियो सिलेक्टिव क्या कहता है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज पॉसिबल, मेजर एंड माइनर, ठीक है। तो मेजर कौन सा है, ये क्या मेजर सब्स्टिट्यूट आप ये देखो, इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन से एक ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन से दो ग्रुप तो लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है। तो बता कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है ZJF रूल और रीजियो सिलेक्टिव, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द E1 एलिमिनेशन। अब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप में से शायद किसी ने पूछा भी था मुझसे, जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ओनली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह कंसंट्रेशन हम अल्काइल हेड का बढ़ाते हैं तो क्या होगा, और कंसंट्रेशन हम आपका बेस या सॉल्वेंट जो भी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा।
तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्वेंट का और बेस का बढ़ाओगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो डिपेंड करता ही नहीं रेट उस पर, क्योंकि सीधी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर कंडीशन में बहुत पूछते हैं। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, हियर द टू केस। अब ये देखो, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे SN1 की बात हो रही है, द कंप्लीटिंग रिएक्शन ऑफ द SN1 रिएक्शन। तो जहां पर E1 एलिमिनेशन होता है वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि SN1 भी एलिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि SN1 में E1 में दोनों में ही कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। तो यहाँ से अगर ये बाहर निकल गया तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन निकलता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक, बात समझ आ रही है नहीं? और या फिर अगर SN1 एलिमिनेशन हो रहा तो SN1 में तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी उसने उस ग्रुप को निकाला अपनी जगह, उसकी जगह पोजीशन लगा दी। तो यहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन जब बनता है SN1 में तो पॉसिबिलिटी होती है इधर से भी अटैक करने की और इधर से भी अटैक करने की, है ना। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाए। बट क्योंकि डबल बॉन्ड में कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री होती नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे शो नहीं की। ठीक है ना। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। This is the energy profile diagram like the SN1 reaction. See, in SN1 reaction also two transition state is possible. Also in E1 elimination also two transition state is possible, because first transition state for removal of the X and then the formation of carbocation. In next transition state removal of the hydrogen and formation of the alkene. But in SN1 attack of the nucleophile and the formation of the product. So there are the possibility of the two transition state in both cases. But SN1 is because SN1 is a completing reaction than E1 reaction. If in any case both reaction is possible, तो maybe the chances of in this type of the reaction कि SN1 is major product. Okay, तो ये डिपेंड करता है किस पर आपका, ये डिपेंड करेगा आपका बेस पर। तो वहां पर बेस को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि बेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वीक बेस यूज करा है। तो वीक बेस क्या होता है अक्सर, क्योंकि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना तो स्ट्रॉन्ग ना वीक, कोई भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि कैसा उसने बेस यूज करा है। अगर इन द फॉर्म ऑफ द बेस यूज करा है तो आप एलिमिनेशन करोगे, इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोफाइल तो आप वहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है सर, ये ग्राफ समझ में नहीं, सर ये कैसे बनाएं? क्या चीज? ग्राफ? यस सर। ग्राफ का तो ऐसा बना है इन फर्स्ट स्टेप में। ये देखो यहाँ क्या है, पहले स्टेप में यहाँ से कि हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या है, कोई दिखाया मैंने आगे? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, चलो नहीं दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि कोई ग्रुप होगा, जैसे यहीं पे लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये क्या था, X और ये H था। अब क्या होगा, इसके स्टेज का मतलब है कि X बॉन्ड स्टार्ट हो गया ब्रेक होना। ठीक, यहाँ पर ये कंप्लीट ब्रेक हो गया तो यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ब्रेक होना शुरू हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अल्कीन बन गया। ठीक, ये मतलब है। तो दो टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका ब्रेकिंग ऑफ द CH बॉन्ड, नेक्स्ट स्टेप में ब्रेकिंग ऑफ द CH बॉन्ड। ठीक, क्लियर है? सर हाँ। इसके अंदर ये रिएक्शन चल रही है, लेकिन इसके अंदर E1 प्रोडक्ट और SN1 प्रोडक्ट दोनों साइमल्टेनियस फॉर्म हो रहे हैं। हाँ बेटा, नहीं नहीं इसमें नहीं हो रही है, तो मैंने कंपेयर करके दिखाया था। हाँ सर, कंपेयर करके दिखाया है, लेकिन सर हाँ। जब रिएक्शन पहला स्टेप तो दोनों में कॉमन आ रहा है। पहला स्टेप दोनों में कॉमन आ रहा है, जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, वही तो हमने कहा ना कम्पिटिटिव। मैंने पीछे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन SN1। अब यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, समझे? एलिमिनेशन भी हो रहा है यहाँ पे और SN1 और यहाँ पे SN1 भी हो रहा है। तो वहां पर फिर देखना पड़ता है कि हम बेस जो यूज कर रहे हैं, आपका जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है बेस है, वो क्या यूज कर रहे हैं, समझे? तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है, SN1 भी बन सकता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दोनों में हो रहा है। अब जो आप यहाँ से यूज कर रहे हैं कि बेस, अब यहाँ पे क्योंकि वाटर है तो वाटर मैक्सिमम के यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द, यहाँ पे बेस की तरह काम नहीं करेगा ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा काम किसका कर रहा है, या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये कोशिश करेंगे तेजी से अटैक कर जाए कहीं पे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें।
एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे लेकिन डोनेट आसानी से कर देते हैं। तो यहाँ पे चांसेस जो होते हैं ना वो SN1 के ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर इसको ध्यान से देखना पड़ता है कि किस फॉर्म में। हाँ, अगर ये OH माइनस की फॉर्म में होता तो फिर ये एज अ बेस की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O ऐसा नहीं है, H2O की फॉर्म में भी ये बेस की तरह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे SN1 की है। समझे बात को? तो इसलिए SN1 E1 ऐसे ही SN2 और E2 ये सब क्या होते हैं, आपस में कम्पिटिटिव रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से क्वेश्चन को बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो चीज समझ में आने लगती है। सो जैसे अगर वीक बेस यहाँ पे प्रेजेंस हुआ तो यहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर वीक बेस आपने यूज किया है तो वीक, क्योंकि देखो जो आपका E1 और SN1 है ना, E1 और SN1 में कोई भी ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ती है ना ही वीक की जरूरत पड़ती है, मतलब कैसा भी हो बेस या न्यूक्लियोफाइल काम कर जाता है। लेकिन E2 और SN2 में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने पिछली क्लास में SN1 SN2 में पढ़ाया होगा, वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है आइदर वीक आइदर आपका स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे कोई इतना वो नहीं है इशू। लेकिन SN2 में क्या होता है, यहाँ पे आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आसानी से उतना ज्यादा वो उसके लिए फेथफुल होता है। ठीक, हाँ यहाँ पे बस एक चीज है, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं अगर वो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। किसके साथ? इस ब्रोमीन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें भी ये कि E1 होगा SN1 होगा, तो यहाँ पे फिर हम इस बेस को ही देखते हैं जो वीक है तो वो किस फॉर्म में है, किस तरह से दिया हुआ है। अगर वो HN की फॉर्म OH माइनस की फॉर्म में है तो ज्यादा चांसेस है कि वो E1 एलिमिनेशन होगा, और H2O की फॉर्म में है तो ज्यादा चांसेस है कि SN1 एलिमिनेशन होगा। ठीक है ना, तो ये सब पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है क्वेश्चन में। ओके ओके सर। सर BR की जगह I रहता तो सर? वो तो और अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो तो और इसका ज्यादा यील्ड बनाता है। तो सर दोनों में किसको प्रेफर करेंगे, E1 या SN1? तो यहाँ पे तब भी वही दोनों कम्पिटिटिव रहेंगे, तब भी दोनों लगे, समझे? चाहे E1 लो, क्योंकि देखो एलिमिनेशन जो आपका लीविंग ग्रुप का काम है वो तो लीव करना तेजी से कहीं भी कर, वो तो चाहे SN1 लो तो उसको भी तेजी से लीविंग कराना है उसको। ठीक है, और एलिमिनेशन लो वहां पे भी लीव करेगा। तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो बेस उसके आपके न्यूक्लियोफाइल और बेस पे डिपेंड करता है। समझ रही बात नहीं आ रही? ब्रोमीन आयोडीन सबसे बेटर है, फिर ब्रोमीन है। हाँ, इसमें बस ये होता है ना ईल्ड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, कि मान लो जैसे एलिमिनेशन यहाँ पे 95% बनना है, हो सकता है कि वहाँ पे 90% बने अगर क्लोरीन या फ्लोरीन यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही हो सकता है कि SN1 एलिमिनेशन यहाँ पे 100% बनना है, तो हो सकता है वहाँ पे 98 90 और 97% बने, तो इतना फर्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही अपने अकॉर्डिंग कम हो जाएंगे। आगे बढ़े? यस सर। Okay. So next is the E2 elimination, and E2 elimination means one step process depend only on the concentration of the substrate and base both. Also this is the concentrate steps and anti-position to each other, जो मैंने भी आपको बताया दोनों 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखो ये भी एंटी है इसके, ये एंटी है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये है E2 एलिमिनेशन के आपका रिक्वायरमेंट। अगर आप दोनों ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही है तो वहाँ E2 एलिमिनेशन नहीं होता, फिर वहाँ पे EI होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बेस एंड सबस्ट्रेट, बोथ पे डिपेंड करेगा। इसलिए जब इनका ग्राफ बनता है, अगर कंसंट्रेशन बेस का बढ़ा दें, डबल कर दें या इसका डबल कर दें, तो दोनों ही केस में रेट बढ़ता जाता है। ये भी सेम फॉलो करता है सेट-जेफ और रीजो सेलेक्टिव रूल को। रीजो सेलेक्टिव मीन बोथ प्रोडक्ट्स फॉर्म, वन इज मेजर वन इज माइनर। सेट-जेफ रूल वही मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ये है तो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, दिस इज द भाई जो भी मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन कैसे। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया अल्काइल हैलाइड का, तो ये भी ये डबल इंक्रीज हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह अगर बेस का कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल कर दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ग्राफ में ये डिफरेंस आता है। अब आया द मैकेनिक, ये क्या है आपका बेस, देखो बेस की फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे जो होगा एलिमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है। और अगर मैं टर्शियरी ऑक्साइड ले लूं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो वहां पे तो और चांसेस है कि पूरा पूरा बेस का काम करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये तो हो गया बेस की बात। अब मैंने कहा कि दोनों ग्रुप एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। अब ये देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से जो ब्रोमीन है, ये दोनों एंटी पोजीशन पर है, सिम पोजीशन पर है? सेम पोजीशन पे। ये सिन पर है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हाइड्रोजन होंगे। तो
तो यहाँ पे इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं करी है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे दो इस तरह से होंगे, एक होगा सॉलिड फॉर्म में और एक होगा डैश फॉर्म में। तो क्योंकि ब्रोमीन जो है यहाँ पर डैश फॉर्म में है तो सॉलिड वाला बाहर निकल जाएगा, इसलिए देखो प्रोडक्ट ये बनता है इधर वाला, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है, ओनली प्रोडक्ट, बल्कि मेजर क्या ओनली ही यही बनेगा, क्योंकि इधर वाला तो बन ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये सिन पोजीशन पे ना कि एंटी पे, और E2 के लिए एंटी एलिमिनेशन चाहिए, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पे पूरा का पूरा 100% जो भी बनेगा वो यही बनेगा। सर ठीक है? E2 रिएक्शन एंटी पेरिप्लेनर है। E2 रिएक्शन एंटी पेरिप्लेनर है। इधर डॉट से जो हाइड्रोजन दिखाया गया उसके बगल में जो डार्क से वो हाइड्रोजन ही ना है ये सर, डार्क कलर से किया हुआ है। अरे पहले तो यार पीछे से तुम हटाओ, ये तुम्हारा कान ही गायब कर देना, सुनाई का दे रहा है, इतना तेज माइक बोल रहा है तुम्हारा। ये देखो मैंने कहा डॉट का मतलब ये है कि ये डेड डैश का मतलब और ये डेड डैश का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, और E2 के लिए दोनों एंटी होने चाहिए। तो एंटी कब होंगे, कोई एक डैश में हो कोई एक सॉलिड में हो, तभी तो एंटी होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, इसमें देखा ये, ठीक है, अब इसमें देखा ये और आपका ये दोनों ही डेड डैश पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है, दोनों सिन पोजीशन पे ना कि एंटी पर। तो एंटी यहाँ अब पर ये दो हाइड्रोजन है ना सर? अरे तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो दो में एक सॉलिड पर हुआ ना। अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी पोजीशन पे दिखाओगे तुम, अगर किसी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अगर मैं सॉलिड पर कंसीडर करता हूँ, अगर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया तो दूसरा डैश भी तो कंसीडर करूंगा, दोनों सेम प्लेन में तो हो नहीं सकते। यानी अगर एक फ्रंट पे होगा तो उसकी एक बैक साइड पे तो होगा, तो एक को मैंने फ्रंट साइड पर कंसीडर कर लिया, एक को बैक साइड पर। अब जो इसके एंटी था इस ब्रोमीन के, उस हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया। इसके एंटी कौन है, 11 सॉलिड वाला हाइड्रोजन, इसको मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है ना। इसको मैंने नहीं निकाला डैश वाले को, यहाँ पे डैश वाला ऐसे ही रहा, समझे, डैश वाला हाइड्रोजन नहीं निकाला, क्यों, ये इसके सिन पोजीशन पे है, तो ये तो रिमूव होगा नहीं। कौन सा रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। यस सर। ऐसे ही देखो यहाँ हो, दिस ब्रोमीन, कहाँ गया मार्कर, this bromine present on a dash, so the anti position of this position and this position, in this position also hydrogen present on dash position, so this hydrogen not removed from here, so check this position, and this position two groups present D and H, so the anti from this bromine is D, not a hydrogen, so in this case D is removed from here। तो ये देखो यहाँ से D रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ, बट इन दिस केस the hydrogen anti from this bromine, not a D, so in this case hydrogen is removed from here। तो देखो यहाँ पे D का D ऐसे रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये डिफरेंस है। तो जो भी एंटी पोजीशन पर होंगे वही आपका लीव करेगा, वही अल्कीन बनाएंगे बाद में, ओके। एंड दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द E2 एलिमिनेशन, सेम लाइक द SN2 रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, देन द फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्टेबल अल्कीन, ओके। सर जो आपने सर इसमें रिएजेंट है सोडियम अल्कोक्सी, सर उसमें SN2 हो सकता है सर? क्या हो सकता है? SN2 रिएक्शन सर, इसमें SN2 रिएक्शन, वैसे तो देखो SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए भी वही है कि ये अगर और बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्चुअली जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कौन वीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एज स्ट्रॉन्ग बेस काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ बेस ये काम कर रहा था, और ऊपर से इसके पास इन्होंने एंटी पोजिशन दोनों जो स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है एक्चुअली, वो इस तरह से उन्होंने बना रखा है कि आप इसको यहाँ पर सॉरी E2 एलिमिनेशन ही पॉसिबल करो, लेकिन यहाँ पे SN2 भी पॉसिबल है, कम्पिटिटिव रिएक्शन यहाँ हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं होगी। हाँ, अगर मैं इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो मैं भी पीछे लिख रहा था, अगर मैंने और बड़ा बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो तब फिर पूरे के पूरे चांसेस है कि यहाँ पे बेस हो, वहाँ पे आपका E2 एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये एक भी आपका स्मॉल बेस है, और समटाइम्स ये आल्सो वर्क करता है एज आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करे और यहाँ पे बेस की तरह भी काम करे, दोनों तरह से काम कर सकता है सर। SN2 में भी सर स्ट्रॉन्ग बेस यूज होती है ना सर? हाँ, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, तभी तो कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं, असल में न्यूक्लियोफाइल की एक कंडीशन होती है, न्यूक्लियोफाइल में भी ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्या है,
यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है क्योंकि ज्यादा हिंडर्ड नहीं है। जैसे OH है, इसके मुकाबले OH ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन OH3, हिंडर्ड नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपने देखा होगा जैसे SN2 रिएक्शन में क्या है, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होती है वहां पे आपको दोनों ही चीजों की चेक करनी पड़ती है। हिंड्रेंस जो भी मैं आगे बताऊंगा, हिंड्रेंस चेक करते हैं, चाहे वो आपका बेस हो जो आपका न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, या है आपका सबस्ट्रेट हो, वहां पे हमें दोनों की वो देखनी पड़ती है, हमें हिंड्रेंस तो नहीं हो रही कहीं, ठीक है। अगर इनमें से किसी में भी हिंड्रेंस है तो वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होती, बस आप इसी से चेक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होती है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड स्टेप होता है, अपोजिट साइड होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे आसानी से बैक साइड अटैक कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी पे ये देखो यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ गए, 3 ग्रुप लग गए। तो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया भी था SN सब्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे हिंड्रेंस होती है वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आसानी से ये नहीं होती है सर कभी। नहीं पहुंच पाता। बट ये देखो E2 एलिमिनेशन तो क्या है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला है, तो चाहे कितना भी हिंडर्ड हो वहां पे तो, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है नहीं है, वहां पे तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। E2 तो हमेशा हो जाएगा यहाँ। हाँ, ये वही तो मैंने कहा ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल और बेस, आपको ये देखने पड़ते हैं कि वहां पे जो आप दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल यूज करता हूँ तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि SN2 रिएक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी हिंडर्ड नहीं है, लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पे प्राइमरी पे चांसेस है कि SN2 हो। यहाँ पे आपको फिर बेस चेक करना पड़ेगा कि बेस तो हिंडर्ड नहीं है, अगर बेस आपका हिंडर्ड नहीं है तो फिर वहां पे फिर दोनों कम्पिटिटिव रिएक्शन हो सकते हैं, E2 भी हो और SN2 भी हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो वहां पे बेस और आपका सबस्ट्रेट दोनों ही चेक किए जाते हैं। अगर वहां पे हिंड्रेंस है तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी है E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ये बताओ अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन ब्रोमीन निकल रहा है तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा, टर्शरी तो बनना है, तो ये यहाँ पर हिंडर्ड है, यहाँ पे जो ब्रोमीन है कि हिंडर्ड है, SN2 नहीं होगा, तो यहाँ पे SN2 पॉसिबिलिटी कम है। देखो बनने को तो कोई भी रिएक्शन जब होती है, कोई भी आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, एक मेजर माइनर, ठीक है। बेटा पहले माइक बंद करो बेटा अपना, जब क्वेश्चन पूछना तो ऑन किया करो, ठीक है। तो मेजर और माइनर यानी एक की ईल्ड कम होगी, नेग्लिजिबल ईल्ड आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होती है, कि आपको पहले पता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो 100% कोई नहीं होता। तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि SN2 यहाँ पे नहीं है, ये तो हम क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जांपल जो हमने पढ़ा है अब तक देखा है सारी चीजें, उसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि SN2 का क्योंकि मतलब नहीं है 0% या 0.11% बनने का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है, या 1%, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहे कि पॉसिबिलिटी वैसे तो हम कहेंगे नहीं है, लेकिन आप मान लो आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया वहां पे दे दिया, तो वहां पे क्या करोगे, कि दोनों प्रोडक्ट बनते हुए दिखा दिए, तो वहां पे तो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि हिंडर्ड पोजीशन पर SN2 रिएक्शन काम नहीं करती, ठीक है। सर अगर हाँ हाँ। सर, अगर बेस बल्कि ले रहे हैं जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले रहे हैं तो सर वहां पे तो हॉफमैन क्या, हॉफमैन रूल क्यों, हॉफमैन Yes, रूल कहाँ sir. लगता है, हॉफमैन रूल कहाँ लगता है, चलो ये क्वेश्चन तुमने अच्छा पूछ लिया, क्या बताओ कहाँ लगता है सर जब E1 CV में। हाँ बताओ। जहाँ बेस बल्कि होता है या रिएक्टेंट एल्काइल फ्लोराइड यूज हुआ वो, बेटा हॉफमैन रूल वहां लगता है जहां पे जो सबस्ट्रेट होता है वो चार्ज सबस्ट्रेट होता है। अब पढ़ना है जाके, जहां तुमने हॉफमैन रूल जब पढ़ बोल दिया है तो जाना किताब खोलना या नेट खोलना, वहां पे लिखा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या है, जो सबस्ट्रेट है वहां पे चार्ज सबस्ट्रेट होते हैं, इस तरह से तुमने देखा होगा। ये CH3 लगा हुआ, ये चार्ज प्लस चार्ज लगा होगा, उसके बाद CH2 ये लिखा होगा, देख लेना जाके जाओ, इस टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ZJF का अपोजिट होता है आपका हॉफमैन। ZJF में क्या होता है आपका, पर वो हॉफमैन मेजर हो जाता है। हाँ, ZJF में होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट, बट हॉफमैन में क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बट हॉफमैन अप्लाई ऑन द चार्ज स्पीसीज एंड ZJF रूल अप्लाई ऑन द अनचार्ज स्पीसीज। अनचार्ज का मतलब क्या है, जैसे ये यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल है आपका, कहाँ गया मार्कर, अरे यार तो गायब हो जाता है, ये रहा, ठीक है। ये क्या अनचार्ज स्पीसीज पे किसी पे कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल पर ZJF रूल लगता है। लेकिन जहां पर चार्ज स्पीसीज होते हैं वहां पे क्या लगता है,
हॉफमैन लगता है। अब लेकिन जरूरी नहीं है, अब एग्जाम्पल जो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जामिनर, वो कैसे पूछते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसमें आपसे कह देंगे बताओ इसमें कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट है, कौन सा सेटजेफ प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ ये प्रोडक्ट आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ। बट अगर हॉफमैन के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर चार्ज स्पेसीज भी है तो वहां पे क्या बनता है, लेसर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन ये दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना इस चीज को। ठीक है, इसलिए कहीं पे लिखा हुआ दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट और दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपेयर कर रहा है हॉफमैन वाले से, क्योंकि वहां पे लेसर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज मेजर बनता है। ठीक है ना, ठीक। ये क्वेश्चन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हॉफमैन हमेशा लगेगा चार्ज स्पेसीज पर। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ जिससे तुम लोगों को याद रहेगा यार, क्योंकि पता नहीं मार्केट किधर चला जाता है, किधर गया, कहीं पे लाइन ये आ गई, हॉफमैन। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, और ये चार्ज स्पेसीज पे लगता है। ठीक, सो इसलिए अब E2 और SN2 में डिफरेंस पता चल गया। कोई भी एक भी सबसे आपका सबस्ट्रेट या आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल जो भी है जो यूज कर रहे हैं, अगर वो कोई एक भी हिंडर्ड है तो वहां पर आपका E2 एलिमिनेशन होगा, SN2 एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना, वही केस आप चाहें तो इसमें भी ले सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं, E1 में भी ले सकते हैं। E1 में भी जो आपका बेस न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, और बेस कैसा भी यूज हो सकता है। ठीक है, हिंडर्ड भी अनहिंडर्ड भी। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द E1CAV एलिमिनेशन। इसको मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल कहां गया OH ग्रुप और OR, ये क्या, पुअर लिविंग ग्रुप। अब ये देखो, ये क्या है, अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन। व्हेन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन here are the negative charge developed and this negative charge is stabilized by this electron withdrawing group। कैसे, देखो ये एग्जांपल तक दो, बेस की प्रेजेंस में यहाँ तो हाइड्रोजन निकला, जो नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे वो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। देन दिस नेगेटिव चार्ज बैक मूव हियर एंड दिस हेलोजन ग्रुप रिमूव फ्रॉम हियर, और दिस लीविंग ग्रुप कह सकते हैं। हेलोजन ग्रुप नहीं कहो तो लीविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, OTS, जैसा OTS तो बेटर लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो क्या होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो जहां पर भी आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप के कंपाउंड, या जहां पर आपका लीविंग ग्रुप जो होता पुअर होगा, वहां पे E1CB एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। हियर आल्सो देखो, यहाँ पे भी नीचे आ जाओ, ये क्या है आपका अल्फा और ये बीटा, तो ये बेटा क्या लीविंग ग्रुप, ये पुअर लीविंग ग्रुप है, तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ये इधर मूव करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज दोनों, फिर दोबारा बैक करेगा, बैक करने के बाद इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। देखो ये क्वेश्चन जो मैं भी आपसे कह रहा था कि कहीं पर अगर आपका क्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के बाद वो नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस टाइप के केस में E1CB अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो वहां पे आप कैसे देखोगे E1CB हो रहा है, नहीं मतलब कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, क्योंकि E1CB हो गया, पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहाँ से बाहर निकाल दोगे आप। ठीक है, ना कि क्लोरीन। आप देखते ही मैं कहते ना, क्लोरीन द बेटर लिविंग ग्रुप देन रिमूव फ्रॉम हियर, तो कौन सा निकालेगा, लिविंग ग्रुप जो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वहां पे E1CB एलिमिनेशन का ही रूल है कि जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वही लीव करते हैं। ओके, अब्दुल्ला एजाज भैया, पिकनिक बनाना है अब्दुल्ला एजाज, सही है यार तुम लोगों का। चलो खैर। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। हाँ दो रिक्वेस्ट करो। सर जो मतलब अटेंडेंस में इस सेमेस्टर में थोड़ी लीनियंसी हो सकती है सर। अरे पूरी लीनियंसी है कि तुम क्लास तो करो यार, जी क्लास सर। वाला तुम लोग करते नहीं हो, लीनियंसी पहले मांगते हो। अरे सर ये इस समय मतलब वैसे ही मतलब कोविड के चक्कर में। अरे कोविड वो बाद में, ये सब अटेंडेंस की बातें जो है बाद में करना। ठीक है, जब आपका कोर्स होता है असाइनमेंट दे दो, जब मैं आपसे किसी से कहूँ तब ये सारी बातें अटेंडेंस की, तब मुझसे कहना, ओके है ना। जब जो कुछ करना हो उस टाइम करेंगे, अभी ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। ओके सर। ठीक है, क्लास के टाइम से क्लास की बातें किया करो। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द E1CB एलिमिनेशन। देखो ये सब आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, ठीक है,
इसलिए कि अच्छे से अगर आगे भी अगर केमिस्ट्री वाले सर पीछे वाला स्लाइड एक बार रिकॉर्ड करवाइए ना तो पीछे वाला सर, तो वो आगे क्लोरीन क्लोरीन वाला समझाइए ना सर, समझ में नहीं आया। मैंने क्लोरीन वाला ये कहा, मैंने कहा कि इस जो E1CB एलिमिनेशन है वहां पर जा रहा है पुअर वन, जो भी पुअर लिविंग ग्रुप होगा उसको हम क्या करते हैं E1CB एलिमिनेशन में वो रिमूव होता है। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर किसी में ये प्रेजेंट है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा बेटर कौन सा? क्लोरीन है। अब अगर मैं E1CB एलिमिनेशन यहाँ लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि फ्लोरीन इज पुअर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन, तो मैं यहाँ से फ्लोरीन को रिमूव कर रहा हूँ, ना कि क्लोरीन को करूंगा। मैंने ये कहा आपसे, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू E1CB एलिमिनेशन द एब्स्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोजन दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय दिस बेंजीन रिंग। ठीक है, दो बेंजीन लगी हैं, इसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाती है, फिर ये हेल्प करती है रिमूव करने के लिए जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है उसको। अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप होता तो फिर यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होता, ना कि E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, ये बताया मैंने। आगे बढ़े। यस सर। एग्जाम्पल सर, क्या चीज? एग्जाम्पल सर, फर्स्ट वन सर। कौन सी एग्जाम्पल? ये यस यस जी सर। ये देखो, ये था बढ़िया, नहीं था, चलो खैर। ये था, मैंने कहा ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ से कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद यही तो बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज है। अब दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय दिस कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। फर्स्ट क्लास में बताया नहीं बताया आपको, जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया। ठीक, ये स्टेबल हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बैक मूव, मतलब क्या है कि जब ये बैक मूव करा यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब यही तो होगा कि ये नेगेटिव, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ से अगर मैंने ये एक्स बाहर निकाल दिया ये पॉजिटिव, यही तो मतलब है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये तो मतलब हुआ। बस ये क्या होता है, ये ड्राइविंग फोर्स कहलाते हैं। ये क्या है, जब उसके साथ नेगेटिव चार्ज आ गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ड्राइविंग फोर्स मिल गया उसको रिमूव करने के लिए यहाँ से, क्योंकि ये OH की फॉर्म में कभी भी NH2 की फॉर्म में या OR की फॉर्म में, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है, कभी भी इस फॉर्म में नहीं निकलेंगे कि हम कहते हैं कि OR माइनस बाहर निकल गया, OH माइनस बाहर निकल गया, इस तरह से कभी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर मैं, हाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया कि O अगर H लगा हुआ, तो अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दूं तो ये बना देगा OH2 प्लस। अगर OH2 प्लस बना दे, क्योंकि मैं इसको रिमूव करता हूं तो वाटर बाहर निकल जाएगा सिंपल, तो वाटर तो एग्जिस्ट करता है, OH माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करता है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो वाटर तो एग्जिस्ट करता है, तो आसानी से बाहर निकल जाए, इसलिए इसको बेटर लिविंग ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज लग गया। अब इसके पास टेंडेंसी बढ़ गई अपने आप को अपनी तरफ ये बॉन्ड लेने, इलेक्ट्रॉन लेने की। ये चाहेगा कि मैं पूरे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये बताओ इसके पास तो कोई ऐसी टेंडेंसी